was not that welcome a child because they were expecting कि after 4 girls जो हमारी और family में थी एक boy तो होना चाहिए था. You know, you coming from a different family, going to a different family, taking their legacy, taking it to the next level, national level. I never ever wanted to become a gynecologist. हम लोग ना instant gratification में जी रहे हैं. जो चाहिए instant चाहिए, अभी चाहिए और एक ठहराव किसी में नहीं है. Am I read you helped more than 28,000 families? I have stopped counting. But life is not always about roses and sugar. I remember मम्मी हमेशा बोलती थी पहले तो ऐसे ही बच्चे हो जाते थे. You go to for 20 years and उस समय ऐसा था कि people बस हो ही जा रहा है, क्रिकेट टीम बन जा रही है. रोमांस लाइफ से खत्म हो गया. And then you don't feel like कि let's go to bed and make some love and have baby. तो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स बहुत कम रह गए. यू स्टार्ट फॉलोइंग दोज ओव्यूलेशन कैलेंडर्स. आज करना है, आज नहीं करना. We should celebrate today. Today we are sitting here. A guy talking to a gynac is a conflict, which is a good type of conflict. And second is we all are sitting here and talking about it. कुछ भी सही गलत नहीं होता है. उस मोमेंट पे आपने क्या चॉइस लिया और उसका आउटकम क्या रहा, that will decide कि आपका डिसीजन सही था या गलत था. आज मेरे पापा बोलते हैं I think he is a very cool dad, but वो इन चीज़ों में बोलते हैं कि हाँ जल्दी करना चाहिए, ये सब चीज़ें टाइम पे हो जाए तो बढ़िया है. बिल्कुल. So blame is yours, mistakes are yours, credit and achievements are for your teammates. A doctor speaking like an entrepreneur is new, you know. Male infertility is rising more than the female. Marriage is the biggest investment of life. रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी गर्ल्स की वजह से नहीं आती. प्रॉब्लम्स एक वीक स्पाउस मेल हस्बैंड की वजह से आती. देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी इफ यू आर गोइंग फॉर आईवीएफ, ट्विंस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. तो आपको क्या लगता है मैम, आपके पूरे करियर में कभी भी ऐसा कुछ हुआ व्हिच वाज बियॉन्ड साइंस? So thank you for being hijacked, ma'am. I think today we have hijacked you to get a lot of knowledge, information, and obviously we are going to cover some topics which is related to life, entrepreneurship. And when I say entrepreneurship, that doesn't mean, opening a startup or doing a business. For me, today's meaning of entrepreneurship is not just talking about companies, but whatever you are doing in your life, even you are coming to classes, you're going to school, you're going to college, whatever you are doing, if you're working hard enough, delegating your time enough, I think that is for me entrepreneurship is. So we are going to cover 3 things. First is definitely your niche. Second one is entrepreneurship, and third one is, which is I think needed for the youth, is mental health. Very right. So like starting from the introduction, ma'am, I would, we were always wondering when we were working with you, we saw you as a fertility queen, and it was lovely working with you, and I was always curious to know about your childhood. So कैसा था बचपन मैम? मेरा बचपन एज लाइक अदर किड्स था. एक चीज़ उसमें जो थी दैट आई थिंक द डे आई गॉट बर्थ, ये डिसाइडेड था कि मुझे डॉक्टर बनने का है. वो डेस्टिनी है, स्टार्स है, क्या है. एंड आई रिमेंबर दैट आई यूज़ टू स्क्रिबल. जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तो आई यूज़ टू राइट माई नेम एज डॉक्टर नीरज मुंजाल. जब मुझे MBBS पता लगना स्टार्ट हुआ तो मैं नीचे लिखती थी MBBS. एंड लेटर ऑन व्हेन आई रियलाइज दैट इफ़ यू हैव टू बिकम अ बिग डॉक्टर तो यू नीड टू अर्न मोर एंड मोर डिग्रीज. तो MBBS के बाद डिग्रीज एड अप होती है, उसमें कुछ लेटर्स होते हैं, दिस मच आई न्यू. तो आई यूज़ टू राइट वट एवर आफ्टर दैट कि ये है, बहुत सारा डिग्रीज होना चाहिए. तो दिस आई स्टार्टेड ऑफ वेरी अर्ली इन माई लाइफ. आई डोंट इवन रिमेंबर कब से, जब से होश संभाला तब से आई थिंक आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर. एंड आई वॉज अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड. एक होता ना परफेक्ट चाइल्ड, कैंडी, आई कैंडी फॉर एवरीवन. मुझे नहीं पता मैंने कभी किसी से भी डांट खाई है लाइफ में. wow. कभी भी, बी इट माई पेरेंट्स, बी इट माई टीचर्स, थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ, और मेरा कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स, आई वॉज आई कैंडी टू एवरी वन. मे बी इसलिए मुझे कभी गुस्सा भी नहीं आता था. एंड आई वॉज नॉट वेरी एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड. बहुत बाहर नहीं जाती थी. वट एवर आई यूज टू हैव, I was having my small world and I was happy in that and very clear and focused.
मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहे. And this, I think, has made me learn in my personal as well as professional life also कि if you want to achieve something and if you want to be peaceful with your own self, the very important thing required, especially in today's world, पहले भी वो सच था, आज तो ज़्यादा रियलिस्टिक हो गया, avoid distractions. And I was like कि the fifth girl in the family, उससे पहले हमारी फैमिली में कोई बॉय नहीं था. तो एल्डर्स के लिए, मेरे बड़े पापा, दादू, इन सब के लिए मे बी आई वॉज नॉट दैट वेलकम अ चाइल्ड बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग कि आफ्टर 4 गर्ल्स जो हमारी और फैमिली में थी, एक बॉय तो होना चाहिए था. बट माई पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी द डे आई गॉट बर्थ. और कुछ उनके एस्पिरेशंस भी मेरे साथ जुड़े थे, लव भी जुड़ा था, और मेरा नाम भी फिर उन्होंने बड़ा ट्रिकी सा रख दिया. मे बी दैट वॉज द एलिमेंट दे वॉन्ट टू ऐड कि चलो नीरज. एंड आई लिव्ड विद दिस कन्फ्यूजन क्लास 10th तक. हर बार मेरे सर्टिफिकेट्स में लिख के आता था मेल. सो आई यूज्ड टू गो एंड पीपल गिव मी. I think the name Neeraj goes with your personality. मे बी आई हैव डेवलप्ड दैट वेज. और बहुत लोगों ने मुझे बोला नीरजा लगा. लेकिन नहीं, this is my name my parents have given to me and this is my identity and I will live up to this. और चीज़ें भी वैसी होती गई. I was in a school where there were 55 का strength होता था and there were hardly 5 or 7 girls. So all my friends were boys. The first time I have seen more than 10 girls at a time was when I entered my medical college. और वो भी एक फ्लूक था, मुझे नहीं पता था. I just opted. I got very good rank all in ये जो हमारा MBBS entrance exams होते थे उस टाइम पे, which we used to call as pre-medical test. Very good rank. I could have opted for any college anywhere in India. But मुझे था पापा चाहिए, भाई चाहिए, घर चाहिए, तो whatever is closest to my house, तो I opted for Lady Harding. So you were always a family-oriented person, you know? Till date, yes. So, and Lady Harding is the only girls' college. So the first day I entered the college, it was a big shock कि इतनी लड़कियां एक साथ में दुनिया में होती हैं. But yes, life give you choices, life give you situations, और उस situation पे आपके choices क्या हैं, that will decide the fate of your life. Because कुछ भी सही गलत नहीं होता है. उस मोमेंट पे आपने क्या चॉइस लिया और उसका आउटकम क्या रहा, दैट विल डिसाइड कि आपका डिसीजन सही था या गलत था. आप सक्सेसफुल हुए तो सही था, गलत हुए तो फेल हुए तो गलत डिसीजन था. दैट इज क्योंकि जब आप हो जाते हो तब तो अच्छा ही होता है. That's how you think. आई वाज अ मैच्योर्ड चाइल्ड. शरारती नहीं थी. So how was your college life? Like we spoke about your school life and you like choosing डॉक्टर ही बनना है. How was your college life? Because जितना मुझे समझ में आया, you were not mischievous at all. Never ever, no. You were always the first bencher, focused on academics. बिल्कुल. College, I did my MBBS from Lady Harding Medical College. It is one of the premier medical schools in India. In New Delhi, if I'm not wrong. Delhi, हाँ, Yeah. Delhi में है, and it has its worldwide recognition. तो I have mentioned already कि जब गई तो it was a big shock कि इतनी लड़कियां, अब मैं इनके साथ में डील कैसे करूँगी. I was little surprised कि अब कैसे करेंगे. But ठीक है, my house and my college was around an hour travel. और मुझे हॉस्टल में नहीं रहना था. तो my college life was start from house, reach to the college. College used to get over at 5 o'clock. वहाँ से स्टार्ट करो, back to house 6:30, 7 o'clock back at home. And first 4-5 years तो ऐसे निकले, adjustments और करना है. मेडिकल स्टडीज़ आर लिटिल हार्ड, ईजी नहीं होता है. एंटर करना जितना ईजी है, फिर उसको परस्यू करना आगे इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. इनफैक्ट मच डिफ़िकल्ट. उसके बाद पता चलता है कि यार ये तो एक नया स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है. पहले तो लगता था एक बार एंट्रेंस क्लियर हो जाए, MBBS मिल जाए तो आपकी लाइफ ऐसी है. बट जब MBBS में एक्चुअली जब एंटर करते हैं, फिर लगता है अरे यार ये तो ओखली में सिर दे दिया, अब तो डेली हैमरिंग होगा. उसके बाद इंटर्नशिप वाज, इनफैक्ट आई शुड से कि एक मोमेंट था मेरी लाइफ का, एक फेज़ था जिसने मेरे पूरे परसेप्शंस को चेंज किया.
I never ever wanted to become a gynecologist. Never, because मुझे लगता था ये gynecologist जो हैं बहुत रूड होती हैं, बहुत वो होते हैं ना डिफिकल्ट टू हैंडल। रूड होती हैं तो ये कहीं ना कहीं आप किसी से मिले होगे तो परसेप्शन हाँ, जनरेट हुआ वो लेडी हार्ट जो सब मेडिकल कॉलेजेस में होता है, बहुत डिफिकल्ट टू हैंडल होती हैं, हर टाइम गुस्से में रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं, ये खुद भी खुश नहीं रहती है और दूसरों को भी खुश नहीं रहने देती है। तो it was like एक चीज़ क्लियर थी कि मुझे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बनना है। एंड मे बी द रीज़न वॉज कि जो हमारा मेडिकल कॉलेज है या कोई भी आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले लो, सो मच वर्क प्रेशर स्पेशली फॉर द गायनेकोलॉजिस्ट। उनको 4-4, 5-5 दिन बैठने को नहीं मिलता है, कंटिन्यूसली 2-2, 3-3 स्लीपलेस नाइट्स होती है, डे एंड नाइट काम कराया जाता है, खाने को कुछ नहीं मिलता है। 1 आउट ऑफ 4-5 गायनेकोलॉजिस्ट जो भी रहते हैं जब पीजी ज्वाइन करते हैं, कभी किसी को टीबी हो जाता है बिकॉज टाइम से खाना नहीं, टाइम से सोना नहीं, और इतना वर्क प्रेशर कि कोई ना कोई बीमार भी होता है और किसी ना किसी को मेजर इलनेस, और इतने सब इरिटेशन में वर्क प्रेशर में इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि आप गुस्सा करने लग जाते हो, आपको छोटी छोटी चीज़ों से भी परेशानी होने लग जाती है। एक एक रात में 2 डॉक्टर्स 40-50 डिलीवरीज हैंडल कर रहे हैं, तो वॉज नॉट एन ईजी टास्क। बट तब समझ नहीं थी, सो आई डिसाइडेड कि गायनिक नहीं बनने का है। बट यू कम अक्रॉस पीपल हु गिव्स यू डायरेक्शन। तो आई मेट वन ऑफ माई सीनियर ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप। उसने वो ये देखा कि शी इज़ द वन who will love her work more than anything else. Because मेरे को अभी तक बहुत क्लियर है कि if I have chosen anything as a profession, तो I have to give my 100% to that, and that should be passion of my life. और वो तब तक पॉसिबल है जब आप उस काम को प्यार करते हो और उसको एंजॉय करते हो। जिस दिन आप काम को एंजॉय करना छोड़ देते हो या वो आपको बर्डन लगने लग जाता है, उस दिन फिर वो आपका पैशन नहीं है। आई थिंक दैट डे वन शुड स्टॉप वर्किंग। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम कोई और ब्रांच उठाओगी, आई नो यू विल गेट एग्जॉस्टेड वेरी फास्ट। आप मेडिसिन उठाओ, आप सर्जरी उठाओ, बिकॉज यू विल ऑलवेज सी दुखी क्राइंग फेसेस ऑल अराउंड यू। गायनेक एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे यू विल कम टू सी द हैप्पी फेसेस, because you're getting a life, yes, you know, so, you will be welcoming life. It's up to you कि आप इसको कैसे लेके जाना चाहते हो। आपको वर्क को एज अ बर्डन लेना है तो आप भी इनके जैसे चिल्लाओगे, अगर आपको उसको एज अ चैलेंज, एज अ पैशन लेना है तो यू विल एंजॉय, यू विल से कि नहीं आज मुझे ज़्यादा काम करना बिकॉज आई वॉन्ट टू वेलकम मोर लाइफ्स। यही एक ऐसा फील्ड है जिसमें ग्लैमर भी है। बाकी आप जितना मर्जी अच्छा कोई डॉक्टर किसी के साथ में कर दे, वो सिर्फ एक थैंक यू बोल करके चले जाते हैं, बट this is a field where we celebrate. And I think जो mental level होता है gynec में, for example, if I am not well, my gut is upset, I am going to a doctor. On the first go only, I am in a negative zone. But if I am going to a gynec, मैं एक उम्मीद के लिए जा रहा हूँ, तो mental level ही उस समय बदल जाता है। तो I think I agree with you. But ये दो धारी तलवार भी है ना। हाँ। आपका mental level ये होता है, आपका क्या, किसी का भी ये होता है कि हमें good news मिलने वाली है। But life is not always about roses and sugar. इसमें थोड़ी कड़वाहट और कांटे भी रहते हैं। तो ऐसा हमारी फील्ड में भी होता है दैट एवरी टाइम एवरीथिंग इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। चीज़ें कई बार हमारी उम्मीद से ख़राब भी होती है, तो फिर वहाँ सामने वाले की एक्सेप्टेंस भी नहीं होती है। इफ़ यू आर एंटरिंग इन एनी ऑफ द अदर फील्ड, कुछ गलत हो जाता है तो आप एक माइंड सेट के साथ गए थे, मैं बीमार हूँ, मुझे ठीक होना है या मुझे कुछ हो सकता है। लेकिन जब हमारे पास कोई आता है, एज यू सेड, माइंड सेट होता है मुझे कुछ मिलने वाला है, कुछ छीनने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है, वो कोई थॉट प्रोसेस में नहीं लाता। और ऐसा जब कुछ हो जाता है तो इट इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज इन आवर फील्ड, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वर्ल्ड वाइड जो गायनिक है, इट इज़ द मोस्ट लेजिट ब्रांच। कि कोई भी उठा करके कुछ भी बोल देना, लिटिगेशन में डालना, सबसे ज़्यादा गायनिक ब्रांच में होता है, बिकॉज वहाँ पे माइंडसेट ही नहीं है। तो कुछ गलत अगर होता है तो पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, एंड दे जस्ट गो ऑफिशियल एंड यू नो दे टॉक अबाउट स्टफ व्हिच इज क्वाइट कॉमन इन आवर कंट्री, आई वुड से। अभी बहुत ज़्यादा हो गया है उसमें। मुझे लगता है कि इट्स द वे आवर लाइफ हैज़ चेंज्ड। हम लोग ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जी रहे हैं, जो चाहिए इंस्टेंट चाहिए, अभी चाहिए, और एक ठहराव किसी में नहीं है। और
किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेनी है, हर किसी को ब्लेम डालना, चीज़ों को बाहर निकालना बहुत सबको ईजी लगता है, और सोशल मीडिया में बस लगता है कि हम कुछ भी हो रहा है तो डाल दें एंड आवर जॉब इज़ डन और उसको वायरल कर दें, बट दिस इज़ नॉट अबाउट लाइफ. दैट्स वाई मेंटल हेल्थ इज़ गोइंग डाउन, बिकॉज एक्सेप्टेंस नहीं है, हम चीज़ों को रियलिटी चेक नहीं देते हैं, और जो है, जो बच गया उस पे ध्यान देने की बजाय जो नहीं है उस पे ध्यान देते रहते, और हमेशा एक दौड़ में फंसे हुए हैं विच इज़ नेवर एंडिंग व्हेन वी आर रीचिंग नोवेयर. तो दैट इज़ द रीज़न कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि व्हेन एनीवन यूज्ड टू विजिट अ डॉक्टर, तो वो भी कुछ नहीं पूछता था, डॉक्टर भी कुछ नहीं. आई स्टिल रिमेंबर, आप पुरानी अगर मूवीज़ देखो ना, तो डॉक्टर बस ऐसे हाथ पकड़ता था, ये लो, और मरीज़ बोलता था हाँ ठीक है, हो गया काम. टेस्ट भी बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं किए जाते थे, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता था. बट आजकल एवरीवन बिफोर कमिंग टू द एक्चुअल डॉक्टर आर द गूगल डॉक्टर्स. वो सब पढ़ के आते हैं और ये भूल जाते हैं कि इट्स अ सर्च इंजन meant for those who know how to process that information. आज मैं अगर डॉक्टर हूँ और अगर मैं मेडिकल से रिलेटेड कुछ गूगल पे सर्च करती हूँ, इट इज़ अ बून फॉर मी. बट इफ़ आई वॉन्ट टू से गो टू द एयरपोर्ट और मुझे कार चाहिए, टैक्सी चाहिए, और मैं उसमें सर्च करने लग जाऊँ टैक्सी कैसे बनती है, एंड आई स्टार्ट मेकिंग इंजन, और फिर अब ऐसे गाड़ी बनाओ, और फिर It won't make sense. इट विल नॉट मेक एनी सेंस. मैं सामने वाले को भी परेशान करूँगी, खुद को भी परेशान करूँगी. टैक्सी वाला बोलेगा मैडम आपको जाना है एयरपोर्ट, बैठो चुपचाप जाओ, इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी कि कितने पावर का इंजन है, कैसे चली, डीजल है, पेट्रोल है. दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग नाउअडेज. लैक ऑफ ट्रस्ट. आई थिंक एक ह्यूमन टच हम धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं, एंड वी आर बिकमिंग मोर इनटू living more into mechanical world, and that is adding stress in our lives. Makes sense. Just coming back to your point, I agree with you that gynecology is something jisme it's a more than technical, it's an emotional thing, especially in a country like India, where people are quite cautious, curious about giving birth to a baby. आज की डेट में आई रिमेंबर मम्मी हमेशा बोलती थी पहले तो ऐसे ही बच्चे हो जाते थे और पल जाते थे ऐसे ही. राइट नाउ इन टुडेज जनरेशन व्हाई कंसीविंग इज अ थिंग, मतलब डोंट यू थिंक इट इज बिकमिंग अ थिंग नाउ, एंड बिफोर यू गो टू बिफोर 20 years, एंड उस समय ऐसा था कि पीपल बस हो ही जा रहा है, क्रिकेट टीम बन जा रही है. 2-3 रीज़न है उसके. आज एक एक्सरसाइज आई सजेस्ट कि आज आप घर जाना, अच्छा एक डिश बनाना जो तुम्हारी पसंद का हो, और उसे शांति से बैठ के खाना, और फिर उसी चीज़ को एक बार स्टेप बाय स्टेप खाना, गूगल में पढ़ करके कि मुझे अगर बिरयानी खानी है तो मैं कैसे खाऊं, उसको किस तरीके से खाना चाहिए, एंड स्टार्ट फॉलोइंग दो स्टेप्स. फिर मुझे बताना मज़ा किस में आया और ईजी क्या था. दिस इज़ व्हाट वी have forgot, that giving birth to a child is a natural, it's a nature process. Procreation is human right. तो हमने उसको एक टास्क बना दिया है, और जब आप किसी एक नेचुरल चीज़ को टास्क बना देते हो तो वो वैसी डिफ़िकल्ट हो जाती है. सेकेंड, एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन कि हमारे लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गए हैं. वी आर गेटिंग मोर करियर ओरिएंटेड नाउअडेज, विच इज़ अ गुड थिंग. बट क्या होता है कि हम बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं लाइफ का. हम ये भूल जाते हैं कि करियर जितना ज़रूरी है, उतनी या उससे ज़्यादा ज़रूरत आपकी पर्सनल हेल्थ और आपकी लाइफ एंड फैमिली है, जिसको हम लीस्ट प्रायोरिटाइज करते हैं. और एट द एंड ऑफ द डे आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी से पूछोगे तो वो यही बोलता है कि पैसा कमा लिया लेकिन रिलेशनशिप्स या फैमिली या हेल्थ पीछे छूट गया. और जो ओल्ड या वाइज लोग होते हैं वो बोलते हैं भले ही थोड़ा स्लो चलो, बट मेक श्योर दैट यू शुड बी एबल टू रन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज दैट विल एड मोर लॉरल्स एंड क्रेडिट इन योर लाइफ. बट हम जल्दी भागते हैं, उसके बाद हर चीज़ हमें जल्दी जल्दी चाहिए, इंस्टेंट नूडल्स के जैसे. लेकिन नेचर तो अपना टाइम लेकर के करती है. 2-3 महीने में बच्चा नहीं होता तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं. फिर वर्क प्रेशर तो है, आगे एक दूसरे से बढ़ने का होड़ भी है. पहले क्या होता था, एक लिमिटेड एनवायरनमेंट था, कंपटीशन जेलसी नहीं था.
आज आप अपने में बहुत खुश हो, मैंने आज बहुत अच्छा किया, बट सडनली यू ओपन द इंस्टा, यस, अरे ये वहाँ घूम रही है, अरे ये उसने ये कर दिया, एंड यू फॉरगेट योर ओन हैप्पीनेस एंड योर ओन अचीवमेंट एंड यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ, वो ये कर रहा है, आपका नेगेटिव इमोशंस अब अंदर बिल्टअप होने स्टार्ट हो गए। एंड बाय द टाइम यू रीच होम, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी एंड देयर वर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोई घर संभाल रहा है, कोई खाने का देख रहा है, कोई राशन का देख रहा है, कोई घर का देख रहा है, एंड बाय द टाइम यू रीच होम यू आर रिलैक्सड कि मैंने अपना काम कर दिया, नाउ देयर आर अदर पीपल टू टेक केयर। बट अभी सिंस बोथ बॉय एंड गर्ल आर एट ऑलमोस्ट एट द सेम पेज, बेचारे अपने ऑफिस में झगड़ करके आते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इन द न्यूक्लियर फैमिलीज, घर आते, आज मेड नहीं आई, आज तूने खाना बनाना है, या आज तुझे लॉन्ड्री करना है, वो रोमांस लाइफ से ख़त्म हो गया। एंड देन यू डोंट फील लाइक कि लेट्स गो टू बेड एंड मेक सम लव एंड हैव बेबी, तो वो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स बहुत कम रह गए। और उसके बाद फिर आपको एक ही नहीं बच्चा चाहिए, तो यू स्टार्ट फॉलोइंग दोज ओव्यूलेशन कैलेंडर्स, आज करना है करना है करना है, आज नहीं करना नहीं करना नहीं करना, झगड़ा भी हो रखा है तो नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी दैट दिस इज, और डॉक्टर नहीं तो आजकल तो ऐप्स आ गए हैं, लुक आजकल ऐसा ही है, हस्बैंड वाइफ आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर at times because दोनों में झगड़ा है, but if it is a fertile day she'll show phone, look, so it becomes a mechanical process, या वो दिखा देगा कि देख बात नहीं करेंगे चलेगा, so it is no more an expression of love, that's why people finding it difficult, plus late marriages and women, they must know that they themselves opted to be a superwoman. There's no need to be a superwoman and doing many things at a time. एक चीज़ करो, अच्छे से करो, और ये तय है कि अगर हम वो चीज़ अच्छे से कर रहे हैं तो बाकी की चीज़ें छूटेंगी। And one should not be in guilt of that. If you are a professional woman, take care of your profession. फिर उस टाइम फैमिली फंक्शन छूट रहा है, घर वालों ने कुछ बोल दिया, आज मेरे बच्चे ने कुछ बोल दिया, माई हस्बैंड इज़ नॉट हैप्पी, मेरे इन लॉज ने, दोज आर शिटी थिंग्स। इस कान से सुनो, इस कान तक भी नहीं लाओ, यहीं से बाहर। यू हैव टू लर्न हाउ टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, और ये तो हमारे हाथ में है, बट नेचर विल नॉट चेंज इट्स पाथ फॉर आवर कन्वीनियंस, हमें नेचर के हिसाब से चलना है। तो वुमेन शुड नो अबाउट देयर फर्टिलिटी पोटेंशियल। साइंस ने अगर हमें इतनी सारी खराबियां दी हैं, तो उसने बहुत सारे टूल्स भी दिए हैं कि आप उन खराबियों के साथ में कैसे सर्वाइव करो, कैसे डील करो। तो वन सच टूल इज़ नोइंग योर ओवेरियन रिजर्व्स। तो मेल का विद एज फर्टिलिटी डिक्लाइन होना इज़ नॉट दैट एक्सपोनेंशियल एज इट हैपन्स इन फीमेल। तो फीमेल्स इफ़ दे आर वेरी मच श्योर कि मुझे 30 तक तो मोस्ट लाइकली बेबी प्लान नहीं करना है, बिकॉज मे बी आई एम नॉट रेडी फॉर ए कमिटेड रिलेशनशिप, मे बी मैं बच्चे के लिए भी तैयार नहीं हूँ, या मुझे एक राइट पार्टनर ही नहीं मिला है अभी, तो एटलीस्ट दे शुड नो कि उनके ओवेरियन रिजर्व्स क्या है, और अगर वो कम है तो दे कैन थिंक ऑफ एग फ्रीजिंग एंड ऑल दैट, सो दैट वेज दे कैन मेंटेन बैलेंस। What exactly egg freezing is? Like, people in social media are talking about this a lot of times, and what it is? Every girl is born with a predefined ovarian reserves. Ovaries में जो egg बनाने की capacity होती है, that is decided when a girl is not yet born. वो अपनी mother के womb में जब होती है तो decide हो जाता है that how many eggs she is going to produce throughout her life. And from that reserves, every month we recruit some follicles. उसमें से एक मैच्योर होता है, बाकी सब डीजेनरेट होते हैं। सो हमारा एक सेट रिजर्व है, उसमें से हर महीने हम थोड़ा थोड़ा यूज़ करते चले जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ फैक्ट कि वो एक दिन ख़त्म होगा, और जिस दिन वो ख़त्म होगा वील एंड अप इन अ फेज ऑफ लाइफ विच वी कॉल एज मेनोपॉज। पीरियड्स आने बंद हो जाएंगे एंड वी लूज आवर एबिलिटी टू गिव बर्थ नेचुरली टू अ चाइल्ड। तो ये सब लेडीज़ का, सब गर्ल्स का अलग अलग होता है, विच इज़ जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो जैसे कि मैंने अभी बोला कि दोज गर्ल हु आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मैरिज एट अ डिसेंट एज, मैंने डिसेंट वर्ड इसलिए यूज़ किया बिकॉज सबका अलग अलग होता है। तो अगर उनको लेट मैरिजेस में जाने का है तो वो अपना AMH एक टेस्ट होता है वो कराएं, और अगर वो कम है तो दे कैन गेट देयर एग फ्रीज, और लेटर ऑन जब भी वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार है दे कैन हैव देयर ओन एग्स टू गिव बर्थ टू देयर ओन चाइल्ड। Wow. Is it healthy? Yes.
मैंने क्या बोला, सही गलत कुछ भी नहीं कुछ होता भी है, नहीं। ब्लैक एंड वाइट लाइफ में कुछ नहीं होता है, आपको चॉइसेस लेनी पड़ती है। आप या तो फिर करियर छोड़ दें और जो लड़का आया बाया जो भी मिल रहा है पकड़े और बच्चा करें, और नहीं तो फिर वी शुड वेट फॉर द राइट पार्टनर, वी शुड बी कमिटेड टू आवर प्रोफेशन, और अगर सिर्फ वही करेंगे तो फिर बच्चा छूटेगा। तो कुछ प्लस माइनस तो होता है, बट अदरवाइज एग फ्रीजिंग इज़ वेरी सेफ टेक्नोलॉजी टिल डेट, और एंड इट इज़ बीइंग used worldwide very safely. Ma'am, I was always wondering with the legacy Pehla Jani, and in Indian tradition, when you get married, you go to your sasural. So you coming from a different family, going to a different family, taking their legacy, taking it to the next level, national level. So like, how was the experience in the starting? How was मतलब, taking this legacy forward? How was the overall experience? And मतलब वो difficult था कि वो आपने cope up कर लिया environment के साथ, और you were like born for it, something like that? I should say कि किसी भी गर्ल के लिए when she gets married and leaves her own family, city and goes to someone else's house, easy नहीं होता है, but that can be very welcoming, very pleasing if you are into a right relationship and your partner is right. Marriage is the biggest investment of life, biggest, and I think the most important investment of life, be it for a boy, be it for a girl. क्योंकि अगर एक गलत रिलेशनशिप में फंस गए देन द लाइफ इज़ हेल, और एक बार लाइफ हेल है तो फिर कुछ नहीं अचीव कर सकते। एंड लकीली आई गॉट अ पार्टनर हु अंडरस्टूड कि मेरी नीड्स क्या हैं, एंड ही वॉज वेरी मच क्लियर कि सब चीज़ें एक साथ में नहीं लेकर के चली जा सकती हैं। एंड लकीली वी बोथ रेजोनेटेड विद ईच अदर एज फार एज हमारे प्रोफेशनल एस्पिरेशंस कंसर्न करते थे। वी बोथ वांटेड to work something different in the field of infertility and take it to the next level. So he made things easier for me. Otherwise, I am a Punjabi married to a Sindhi, so it was a cultural shock. I'm from a metro city, born, brought up, educated, everything in Delhi, and then shifted to Raipur was another kind of a shock. But I loved the city and the people here. I think it's all about your partner, how strong he stands with you, how he supports you, और ये सब बातें ना कि स्ट्रॉन्ग वुमन जैसा कुछ नहीं होता है। एवरी इंडिविजुअल इज स्ट्रॉन्ग। मैन के लिए भी इजी नहीं होता है। वो अगर अच्छा है तो ही कैन नॉट से बैड, और ही कैन नॉट एवरी टाइम टेक साइड ऑफ हिज वाइफ एंड अवॉइडिंग हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, बिकॉज उनके साथ भी उसने बहुत टाइम स्पेंड किया है। और अगर वो अपनी वाइफ की साइड नहीं लेता है तो फिर उसे बोला जाता है कि यार आप एक लड़की को लाए और आप उसको कंफर्ट जोन में नहीं डाल रहे हो। आई थिंक मोर देन गर्ल इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द बॉयज़ टू मेंटेन दैट बैलेंस, एंड दे शुड लर्न। हम लड़कियों को सिखाते हैं कि तेरे को दूसरे घर में जाना है, एडजस्ट करना है। आई थिंक वी शुड चेंज आवर पर्सपेक्टिव्स नाउ। हमें अपने बेटों को, अपने लड़कों को सिखाना चाहिए कि लुक, एक स्टेज के बाद तुम्हें बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ेगा। डीलिंग विद योर ओन सेल्फ इज़ वेरी मच ईजी। या एक या दो लोगों के साथ, पेरेंट्स के साथ भी डील करना ईजी है, बट व्हेन देयर इज समवन न्यू इन योर हाउस तो उसको भी खुश रखना है, उसको भी आगे बढ़ाना है, पेरेंट्स को भी खुश रखना है, अपने आप को भी खुश रखना है। आई थिंक बॉयज नीड टू लर्न, मोर डिफिकल्ट देन अ गर्ल एडजस्टिंग इनटू अ न्यू फैमिली। और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी गर्ल्स की वजह से नहीं आती हैं। I think coming it from you gives me a lot of confidence about this. और ना इन लॉज की वजह से आती हैं प्रॉब्लम्स, एक वीक स्पाउस, मेल हस्बैंड की वजह से आती है। इफ ही इज़ नॉट एबल टू मेंटेन अ बैलेंस, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज़ द रीज़न फॉर डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स और डिफ़िकल्ट मैरिजेस। So for me, my husband Sameer was the reason behind what I am able to achieve till date. Ma'am, definitely we spoke about कि conceiving is a thing now, but apart from that, we also see that infertility is increasing, and now there is IVF, there's surrogacy. So, ma'am, today, I think अब मैं ये नहीं बोल सकता
कि ना people are not talking about it. We are living in 2024. I think people are talking about it. And if you remember when we were working together in 2020, then we were discussing, people are not open about it. खुल के नहीं बात करते हैं. But I think we are fortunate now that people are open about it. And आपको क्या लगता है मैम? Because in this podcast we are talking about tier 2 and tier 3, which is the new India, which is the growing India. सब मेट्रो, सब टियर 1 सेचुरेट हो गए हैं, सबका माइंडसेट. आई थिंक नाउ इट्स द टाइम फॉर पीपल लाइक अस हु आर लिविंग इन टियर 2 सिटी. तो मैम टियर 2 और टियर 3 में सबसे पहली चीज़ IVF का एक्सेप्टेंस कितना हुआ है, और हो भी रहा है तो अभी भी आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में इसका और कितना एक्सेप्टेंस होने वाला है? बिकॉज इन माई फैमिली ओनली, लाइक वन ऑफ माई भैया एंड भाभी, in your clinic only, they went for IVF and they're happy. They are like happy couple now. And I remember I told them when I was referring them to you कि एक बार मैम के पास जाओ. So they were in the starting they were not talking about it, but abhi suddenly I see after 3 years people are talking about it. I can go, this is, we should celebrate today. Today we are sitting here, a guy talking to a gynac is a conflict, which is a good type of conflict. And second is we all are sitting here and talking about it. तो मैम IVF का एक्सेप्टेंस, टैबू, इन चीज़ों को आप कैसे देखते हो जो अभी ये चेंज एनवायरनमेंट आया है, विच इज़ क्वाइट गुड आई थिंक, और IVF के सक्सेस रेशियोज भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं. तो आई जस्ट वांट टू नो बिट अबाउट IVF एंड हाउ पीपल आर टेकिंग इट. See, we are still a progressive nation. India is still divided into two halves, and the gap is too much. हमारा एक section है which is too much educated, which is almost controlling the entire world. Technologically अगर हम बात करें, medical advances की बात करें, business की बात करें, तो we have taken almost every field. Indians have conquered almost every field. I agree. But at the same time, we have another segment of the society जो कि अभी भी underprivileged है. They are still struggling for the basic necessities of life: good food, quality food, basic living standards, good drinking water, a right to have education, basic education. They are struggling in that. So we deal with both the sectors. तो एक सेक्टर वो है जहाँ खुल के IVF की बात करते हैं. इनफैक्ट दे वांट, बिकॉज उनसे अब नेचुरली वेट नहीं होता है, या वो नेचुरली बच्चा करना नहीं चाहते हैं, या दे आर एट दैट फेज ऑफ लाइफ वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल नेचुरली. सो दे आर ओके विद इट कि ठीक है, हम लोगों का ये चॉइस था एंड वी नो कि एडवांस एज में IVF से पॉसिबल है, सो वी आर ओके विद इट. सो देर इज़ वन सेगमेंट दैट हैज़ टेकन इट वेरी पॉजिटिवली एज अ टेक्नोलॉजिकल बूम. बट देर इज़ अनदर सेगमेंट जो कि अभी भी जिसमें अवेयरनेस की कमी है, वो लोग आज भी छुपाते हैं, स्पेशली अगर वो मेल इनफर्टिलिटी है तो. एंड यू हैव सेड कि इनफर्टिलिटी इज़ राइजिंग, यू आर वेरी राइट, बट आई विल मेक वन करेक्शन, मेल इनफर्टिलिटी इज़ राइजिंग मोर देन द फीमेल. वो एक्सेप्टेंस दोनों सेगमेंट में थोड़ा सा अभी भी दबा है कि फीमेल्स आर very much comfortable most of the time accepting their flaws and taking to IVF कि ठीक है, हो गया, और वो ओपनली डिस्कस भी कर लेती हैं, और हस्बैंड्स भी बड़े आराम से डिस्कस करते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू मेल्स एंड इफ दे फाइंड इट कि नहीं, दे आर द रीज़न बिहाइंड द कपल नॉट हैविंग चाइल्ड, एक तो उनके लिए बहुत बड़ा शॉक है, बिकॉज ये अपब्रिंगिंग हमारे में अभी भी नहीं आई है. फीमेल्स आर स्टिल रेडी टू एक्सेप्ट देयर फ्लॉज, बिकॉज समहाउ बचपन से सिखाया जाता है, और हम अपने बेटों को ये एक्सेप्टेंस नहीं दे पाते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके साथ में शेयर नहीं होती हैं. तो इट इज़ अ शॉक फॉर देम, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर द वन हु विल बी हाइडिंग द थिंग्स कि चुपचाप कर दो, बताओ नहीं कि IVF से हुआ है. या आज भी बहुत लोग ये समझते हैं कि IVF मतलब समवन्स एल्स चाइल्ड. तो वो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन किस सोसाइटी के सेगमेंट से आ रहा है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है. बट येस, थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, एंड आई थिंक विद इंक्रीजिंग टाइम इनफर्टिलिटी जैसे बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन आर लाइफ स्टाइल, changes in our preferences, global warming, which is the biggest reason for male sperm counts going down. तो ये सब की वजह से आई थिंक IVF का एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगा, उसका रीच भी और मार्केट दोनों सब बढ़ेगा. Ma'am, as you spoke about male fertility,
मुझे लगता है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, यू नो वी ऑलवेज से, हम तो नहीं बोलते बट ये कहावत है कि यू नो अल्फा जो होता है घर का वो क्यों छुपाए, यू नो दे आर नॉट एबल टू शो देयर फेस समथिंग लाइक दैट। और मैम जब भी फॉर एग्जांपल कोई आईवीएफ के बारे में सोच रहा है, यू नो नेचुरली द बेबी इज नॉट हैपनिंग, आई थिंक अभी तो हमको पता नहीं है कि भाई फीमेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है कि मेल, तब भी क्या होगा, फर्स्ट स्टेप तो फीमेल को ही लेना पड़ेगा कि मुझ में प्रॉब्लम है कि किसी और में प्रॉब्लम है, एंड आफ्टर दैट यू गेट टू नो कि नहीं नहीं शी इज फाइन, देन यू विल जंप इनटू द गाय। वो तो गाय तो सोच भी नहीं रहा है कि मेरे साथ भी हो सकता है, विच इज क्वाइट इंक्रीजिंग, आई थिंक ट्रूली सेड, और वो बहुत बढ़ रहा है अभी। मैम मेल इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रही है? ग्लोबल वार्मिंग आपने बोला, एंड अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल इज देयर एनीथिंग जिस चक्कर में ये बढ़ रही है? स्ट्रेस कैन बी द रीजन, यू थिंक? स्क्रीन टाइम, drugs, alcohol. Bigger than that is the smoking, hookah and cigarette. And more than that is the pressure, bad mental health. Because see, head is the topmost position in the body. और उसके ऊपर में भी ब्रेन का सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट होता है, और सबसे मतलब छोटा सा है लेकिन वो पूरी बॉडी को कमांड करता है। वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आज मेरा लुक कैसा है, मेरे बाल कैसे है, दाढ़ी कैसी है, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। मेरी बॉडी कैसी है, वेट कैसा है, मसल्स कैसी है, बट नो वन टॉक्स अबाउट द ब्रेन हेल्थ विच इज गोइंग डाउन every day because of our stress in and around, bad eating habits, क्योंकि हम जैसा अपने अंदर डालते हैं हम वैसा बनते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नाउअडेज ईटिंग प्रोसेस्ड फूड जिसमें खुद में ही जान नहीं है। ऐसा खाना जो खुद निर्जीव है अगर हम अपने अंदर डालेंगे तो लाइफ नहीं आती। होम कुक्ड फूड बहुत कम खाते हैं, और अगर मिलता भी है तो बच्चों को ये लगता है कि नहीं फटाफट ग्रैब किया भागे, आई डोंट नो वेयर दे आर रशिंग टू। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स वो जो मेंटल एक कंट्रोल है, बिकॉज इट इज़ द ब्रेन विच विल कंट्रोल आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट विल कंट्रोल आवर हार्ट, इट विल कंट्रोल आवर गट, किडनी, हर किसी को वो एक सिग्नल देता है, कंट्रोल करता है कि तुझे इस तरीके से काम करना है। एंड एवरी डे अगर बहुत ज़्यादा वो फाइटिंग वाला बॉडी चलेगा तो ब्रेन को लगता है ना भी पहले मैं अपनी जान बचा लूँ। तो जब वो ऐसा करेगा तो इट विल टेक केयर ऑफ हार्ट, किडनी, लीवर फर्स्ट, एंड लीस्ट ऑफ ऑल विल बी द रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू बी टेकन केयर ऑफ। तो एज अ रिजल्ट मेल के सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ रहा है, दैट नाउ डेज दे आर फीलिंग इरेक्शन प्रॉब्लम उनको ज़्यादा हो रहे हैं, इजैक्यूलेटरी फेलियर्स ज़्यादा हो रहे हैं, उनका फर्टिलिटी भी डाउन हो रहा है, एंड सेम थिंग इज हैपनिंग विद द फीमेल्स। दिस इज हाउ स्ट्रेस is responsible for rising infertility. I think that makes sense. I'm coming down to like IVF or you know your experience. I read you helped more than 28,000 families. I have stopped counting. The But day I think you count or you continue counting, it is like you are not enjoying your work. I was never enjoying child, to be very honest. They used to cry and I used to hate. But since the time I saw my niece, अब ये आप बोल लो कि आपके घर का बच्चा है तो बात अलग है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, बट आई थिंक ये जो सेंस ऑफ प्राइड होता है स्पेशली इन इंडियन कल्चर, बिकॉज वी आर द कंट्री हु इज़ कल्चरली साउंड, डिवर्सिटी हमारे कंट्री में ज़्यादा है, तो मैम करेक्ट टाइम क्या है? मतलब डू वी हैव सम स्पेसिफिक टाइम? और जैसा कि आपने बताया कि अगर आपके भाई कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट जर्नी आपको जीनी है, अपना कमर्शियल लाइफ देखना है, तो उसके लिए आप एक फ्रीज करा सकते हो। तो डू यू थिंक मतलब इंडियन कल्चरल नॉर्म्स वर्सेस साइंस की अगर मैं बात करूं तो क्या ये सही होता है? बिकॉज आज मेरे पापा बोलते हैं, आई थिंक ही इज़ अ वेरी कूल डैड, बट वो इन चीज़ों में बोलते हैं कि हाँ जल्दी करना चाहिए, ये सब चीज़ें टाइम पे हो जाए तो बढ़िया है। बिल्कुल, तो ये सही है? बिल्कुल सही है, बट देयर इज़ नो रूल ऑफ थंब कि हम ये बोले कि इस एज में बच्चा पैदा कर लो, इस एज में शादी कर लो, इस एज में स्कूल जाओ। इट्स नॉट लाइक, आप मुझे बताओ, हर बच्चा एक एज में क्लास 1 में जाता है, एक एज में क्लास 2 में जाता है, बट क्या हर बच्चे का लेवल वैसा होता है? बिल्कुल सही बात है। दैट इज दिस द एजुकेशन? वो क्लास बढ़ रही है बट क्या उसके हिसाब से एजुकेशन बढ़ रहा है?
Life is not about the numbers. Life Mhm. is about experiences and how ready you are to take those experiences and shape your life. तो एज सच कोई एक आइडियल एज में नहीं बोलूँगी कि इस एज में शादी और इस एज में बच्चा कर लेना चाहिए, बट येस देयर इज़ अ नेचुरल बैरियर, बस उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए एंड दैट इज़ मेनली फॉर फीमेल्स. बाकी देखिए, एक बच्चा पैदा करने से ज़्यादा ज़रूरी होती है एक राइट पेरेंटिंग, especially nowadays when there are nuclear families. It is really a task कि आप बच्चा तो चलो पैदा कर लोगे, but who is going to take care of the child at home? Because the child will be requiring a certain amount of your time, your care, everything till a certain age. तो वो सब के लिए हम कब प्रिपेयर हैं, कौन कितना स्टेप बैक करना चाहता है, बिकॉज दोनों ही अगर हस्बैंड वाइफ एक ही पेज पे हो जाएंगे देन इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट. तो दे हैव टू सिट, डिसाइड, नोइंग द नेचुरल बैरियर्स कि कौन करियर में थोड़ा सा स्टेप बैक लेगा और फिर बाद में एक हाई जंप लगाएगा. तो इस तरीके से वन कैन क्रिएट अ बैलेंस एंड डिसाइड दैट व्हाट इज द राइट एज. अदरवाइज देयर इज नो फिक्स्ड रूल, नो फिक्स्ड रूल. Ma'am, you know, on that day when we were discussing about the podcast in your hospital, I saw one thing, and I told you also, you know, is something happening you just in your own zone, because you were seeing a lot of patients, you know, hundreds of patients in a day. So I wanted to ask, I mean, this is an off-track question. How do you manage being a director of the hospital, also the doctor? You know, जो बिजनेस वाला होता है वो बिजनेस जानता है, धंधा करता है, बट यू आर इन इंडस्ट्री विच इज़, यू नो, जिसमें हमेशा एथिकली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाउ डू यू, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एस्पेक्ट कैसे है कि हाउ डू यू मैनेज योर टीम, हाउ डू यू कीप देम मोटिवेटेड, एंड इन द सेम टाइम यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड टू सी योर पेशेंट्स वन बाय वन. जो वो मोनोटनी आ जाती है वो कैसे मैनेज होता है? तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मोनोटनी और दूसरा, यू नो, हाउ टू मैनेज द टीम. आई एम मैनेजिंग द टीम एंड आई थिंक इट इज़ अ रियली डिफिकल्ट जॉब. और मैं तो और सोच के मुश्किल रख सकता हूँ, अगर मैं डॉक्टर होता या कुछ प्रोफेशनली कुछ ऐसी चीज़ों में होता, वो कितना डिफिकल्ट होता. The credit goes to my meditation part. You meditate? I meditate and I practice Sahaj Yoga, and it is a Kundalini yoga. And I have said कि अगर आप ड्राइविंग सीट पे हो and if you have a good control over the steering wheel and the driver is good, तो आप कैसे भी रोड हो, कैसा भी कुछ हो, you most of the time tend to manage journey in a nicer way. फिर कार कैसा है कैसा नहीं, अगर ड्राइवर अच्छा है तो. So I make sure कि my mind, my brain is always at the right position. और ये एक बार का गेम नहीं है, एवरी डे इज दिस स्ट्रगल, क्योंकि आपको लोग उंगली करते हैं, खुजली होती है, एंड इट इज, वो खुजली से इतना नुकसान नहीं होता जितना वो खुजा करके आप ब्लीड करते हो अपने आप. हाँ, करेक्ट. सो यू हैव टू स्टॉप दैट अर्ज कि खुजाना नहीं है मेरे को. दैट कम्स विद मेडिटेशन एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन 20 लॉन्ग ईयर्स बैक. और आई मस्ट से साइंस कितनी भी एडवांस आज की डेट में है, modern science, but we were much advanced when we were in the era of Ramayana और महाभारत. हमारा जो हिंदू कल्चर है वो साइंटिफिकली इज़ द मोस्ट एडवांस कल्चर, और हम उसको भूल चुके. हम डॉक्टर्स जितने भी साइंस की बात करो, जितना बड़ा डॉक्टर होगा वो उतना बड़ा गॉड में बिलीव करता होगा, एंड आई डू बिलीव इन गॉड. बट गॉड बिलीव करना, मंदिर में जाना, पूजा करना नहीं होता. इट्स विद इन यू, बिकॉज मैं तो एक ही चीज़ मानती हूँ, आप उसका अंश हो. और अगर हमें ईश्वर को पूजना है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ. स्वार्थी बनो, स्व के अर्थ को जानो एंड टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ. व्हेन वी से ओन सेल्फ, इट्स नॉट ओनली योर बॉडी, प्राइमरली इट इज़ योर सोल. इफ़ यू आर अ गुड सोल, आप सही लोग ही अट्रैक्ट होंगे आपके पास. आप गलत लोग भी अगर हायर करोगे वो छट जाते हैं, आपके साथ में ज़्यादा काम नहीं कर सकते. तो only the kind of people, the kind of energy you radiate, you will attract that kind of energy. And this is science. आज मैं बोल रही हूँ, ये सालों तक रहेगा, recorded. Though I may not be living on this earth, but my energies are there. ये यूनिवर्स में रहता है.
तो जब आप टीम की बात करते हो, आपको टीम नहीं चलानी है, आपकी टीम अपने आप चलेगी अगर आप ठीक से चल रहे हो. दिस इज व्हाट आई हैव लर्न, that what you want from your team, don't tell them, start living those principles or those values within you. तो ऑटोमेटिकली लोगों को समझ में आ जाता है, एंड विदाउट टीम डेफिनेटली यू कैन नॉट अचीव. और एक चीज़ जो मैंने समीर से सीखी है, एंड पार्टली फ्रॉम माई फादर, दैट इफ़ यू वॉन्ट टू लीड अ टीम, गिव देम क्रेडिट इवन फॉर योर ओन वर्क, but take the blame of everyone's mistake. So blame is yours, mistakes are yours, credit and achievements are for your teammates. Wow, I mean, a doctor speaking like an entrepreneur is new, so impressive, ma'am. Ma'am, आपने अभी you just spoke about the cultural norms in the aspect back there. मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है, मैम. और आपने एक बात और बोली कि जितना बड़ा डॉक्टर रहेगा उतना वो भगवान को मानेगा. आई थिंक आई पार्शली अग्री विद दिस. व्हाई आई वुड से दिस, बिकॉज आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी, आज भी people are debating about it. And do you believe in the conventional medicinal modern medicine, मतलब जो अभी तो modern medicine की हम बात करते हैं और conventional की बात करते हैं. अभी कोरोना के बाद से organic things are coming again, people are talking about, but still there are like lot of जड़ी बूटीज जिसके बारे में लोग बोल रहे हैं, साइंस बोल रहा है कि नहीं this cannot happen, और आयुर्वेदा वाले बोल रहे हैं कि नहीं ये है. तो how do you define Ayurveda and modern medicine? I don't want to be in this debate because body is one, soul is one. These divisions we have made. Modern science, allopathy, Ayurveda, homeopathy, it is for what? Everything is for our own body and soul. So I believe in holistic approach. जब जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ का वहाँ पे इस्तेमाल करो, and for that one need to know everything. अगर हम बोलें कि एलोपैथी मीन्स जस्ट नोइंग अबाउट द आर्टिफिशियली मेड मेडिसिन्स, it is not that. Homeopathy just knowing about the garden grown medicine, everything is the same. हम chemicals की बात करें, कभी वो chemicals आप लैब में बनाते हो, कभी वो chemicals आप जड़ी बूटी से लाते हो, सोर्सेज अलग हो रहे हैं. Based upon that we have made demarcations, but ultimately these are all the same. आज आप लोग पॉडकास्ट कर रहे हो, आप पहले क्यों नहीं करते थे? I think you grow with time. Yes, things are the same, but still we are communicating, exchanging our thoughts. The idea was also the same when there were newspapers, but then the media was different. Nowadays media is different, but emotions are the same. Future maybe emotions will remain the same, maybe there will be a different media, different mean to communicate those emotions. This is exactly the science has evolved. Science is nothing like about yoga or about medicines, allopathy. It is science. It's a holistic approach. We have to take it as wholesome. I think it makes sense. A holistic approach is something, yes, I think, जैसे मैम आयुर्वेदा में people say when it comes to emergency and surgical procedure, I think modern medicine is better, but when it comes to chronic diseases, you can prefer Ayurvedic things, if I'm not wrong. It's one and the same thing. One and the same thing. I think it makes sense. बस यही है, आप स्टारबक्स में जाते हो, you take that turmeric coffee by the name of what? Golden latte. And the same thing when your mom used to give winters में हल्दी डाल करके, मैं नहीं पीऊँगी, मैं नहीं पीऊँगा, and we are paying bucks and bucks for that golden latte. But it's the same turmeric, curcumin. So it's. I think yes. Ma'am, मैंने कहावत, it can be a myth also. मैंने सुना है कि there is always a probability if you are going for IVF, twins होने की probability बढ़ जाती है. सही बात? Yes. सही बात. Yes, because we transfer 2 embryos most of the time, but it is again a personal choice and a selective decision कि आप single embryo transfer कराओगे तो ट्विंस होने के चांसेस विल बी एज पर नेचुरल कंसेप्शन जितने रहते हैं उतना होगा. अगर 2 एम्ब्रायोज ट्रांसफ़र कराओगे तो मल्टीपल ऑर्डर्स के चांसेस बढ़ेंगे, 3 कराओगे तो और ज़्यादा बन जाएंगे. बट
there is a limit. So There's a we limit. prefer doing 1 or 2, not more than 2, until or unless there are some special cases. Ma'am, we spoke about your experience. It's been almost 20 years you've been practicing in gynecologist. तो आपको क्या लगता है मैम, आपके पूरे करियर में कभी भी ऐसा कुछ हुआ विच वाज बियॉन्ड साइंस, मतलब सम मिरेकल? कभी भी ऐसा कोई केस, कोई सिचुएशन? I don't believe in miracles. I believe in God. And I believe that whatever is happening is happening for a purpose or for a cause. तो वो जब थॉट प्रोसेस के साथ आप चलते हो ना, तो आपको कोई भी चीज़ ना तो मिराकुलस लगती है, ना कोई चीज़ आपको आउट ऑफ द बॉक्स लगती है. यू आर जस्ट फ्लोइंग विद द एनर्जीज. आप जस्ट अपना काम करते चले जाते हैं. एंड व्हेन यू बिलीव इन द गॉड ऑलमाइटी ना, तो फिर मिरेकल्स जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता. बिकॉज हम ब्रीथ कर रहे हैं. इमेजिन ऐसा क्या होता है कि सडनली आदमी डाइड क्या हो जाता है. देयर आफ्टर कलर ऑफ द स्किन विल चेंज, आपकी मसल स्टिफ हो जाती है, बॉडी सडनली स्टार्ट गिविंग अ डिफरेंट स्मेल. और एक जब बच्चा पैदा होता है, मदर से जैसे ही वो डिटैच होता है, सडन वो जो क्राई होती है, क्या वो इमोशंस हैं. मतलब एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इज इटसेल्फ अ मिरेकल. वी आर ब्रीदिंग, इट्स अ मिरेकल. कैसे ब्रीथ कर रहा है, कैसे एक बच्चा आ रहा है, मतलब इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन. सो आई थिंक ये जो वर्ड है ना, इटसेल्फ इट्स अ मिसनोमर. और यही वर्ड्स की वजह से ना हम लोग कहीं कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं कि यार कुछ मिरेकुलस लाइफ में होना चाहिए, कुछ हटके नहीं हो रहा है. इफ़ वी स्टार्ट फीलिंग कि हाउ ब्लेस्ड वी आर, कि आज हम बैठे हैं, सुन रहे हैं, वी कैन सी हाउ ब्यूटीफुल द वर्ल्ड इज़. आप बर्ड्स की आवाज़ सुन सकते हो, आप ग्रीनरी देख सकते हो. इट्स सेल्फ अ मिरेकल. और आप जब एक बच्चे को निकालते हो ना, वो जो क्राई जो होती है, एक जो पेरेंट्स के जो एक्सप्रेशन होते हैं, मुझे लगता है कि फॉर मी दिस इज मिरेकल हैपनिंग एवरी डे. आई थिंक ब्यूटीफुली सेड. Even if you are breathing is a miracle. It's a miracle. Ma'am, we often spoke about mental health. In our society, especially in our country, we see, आज भी मैं देखता हूँ, if a mother is taking care of a baby, also father does, but मैं वेस्ट में था, I was in UK for a year, तो मैंने देखा वहाँ पे people are, the father is more inclined towards helping his wife. यहाँ पे I have seen कि like if a husband is in work, वो काम में ही रहेगा. तो मैम जो 9 मंथ होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उस 9 मंथ्स में हस्बैंड को क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और वो कैसा उसको बिहेव करना चाहिए? बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ इन पब्लिक डिमांड. ये लोग पूछना चाह रहे थे कि कैसे इवन आफ्टर गिविंग अ बर्थ टू अ बेबी, कैसे फादर कैन बी अ गुड रोल मॉडल कि साथ में मिल के अपन रेज द बेबी. I'll answer this question in 2 parts. First, you said कि Western world में father is more responsible towards their pregnant wife and towards their children As compared to the yeah. Asian part. It's not their fault. We live in a society where we give importance to joint families. So it is not about how a husband should behave with the pregnant woman. It is about how the people around a pregnant woman should behave and take care of a pregnant woman. So that can be a family, if you are living in a joint family, which is an Asian culture, कि हम लोग joint families में रहते हैं. Every work is distributed, which I love. आप गाड़ी चलाते हो, आगे का पहिए का काम कुछ होता है, पीछे के पहिए का काम कुछ होता है, स्टेयरिंग का काम कुछ है, ब्रेक्स का काम कुछ है. बट इफ़ यू रिप्लेस देम, आगे की जगह पीछे के पहिए लगा दो, ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर लगा दो, तो व्हाट विल हैपन टू योर जर्नी? तो हमारे यहाँ पे देयर वाज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ वर्क व्हिच वाजंट बैड. फीमेल्स टेकिंग केयर ऑफ द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. और पहले के टाइम पे व्हेन वी से अबाउट हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ओनली अबाउट कुकिंग फूड एंड मैनेजिंग द routine chores of the house. It was about managing the finances also. Husband का काम होता था पैसा कमाना and wife का काम होता था how to take care of that money. आज हम उसी चीज़ के लिए लोगों को पे करते हैं कि take care of our funds. आज हम पे करते हैं कि take care of our house. So that time women were doing, and there was an equal division of labor.
ये जो फैक्ट था हमारी लाइफ का, ये धीरे धीरे करके डाइल्यूट होता चला गया, एंड वी हैव गिवन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू वुमेन इक्वालिटी. There is no need to be equal to everyone. Life is all about diversities. आपका रोल आपको प्ले करना, उसका रोल उसको प्ले करना है. तो ऐसे ही हमारी जो फैमिलीज होती है, तो फीमेल जब प्रेग्नेंट है 9 मंथ की, शी इज गोइंग थ्रू लॉट मेनी फिजिकल चेंजेस, लॉट मेनी हार्मोनल चेंजेस एंड इमोशनल चेंजेस. तो उसके आसपास अगर जॉइंट फैमिली है तो मदर इन लॉ या कोई बड़ा घर का वो टेक केयर करता था. नाउ डेज व्हेन द फैमिलीज हैव बिकम वेरी स्मॉल, इट इज़ द हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब उसके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेकिंग केयर ऑफ नॉट ओनली द प्रेग्नेंट वाइफ, बाहर का काम भी देखने का है. तो मोर देन द फिजिकल नीड, इट इज़ द इमोशनल सपोर्ट, करेक्ट, विच दे हैव टू प्रोवाइड. बाकी फिजिकल नीड्स तो क्या होता है, आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हो, बट उस टाइम पे जो एक इमोशनल टर्नमोल हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल की बॉडी में चल रहा होता है, तो हस्बैंड नीड टू टेक केयर और द फैमिली नीड टू टेक केयर कि क्वालिटी टाइम फीमेल्स के साथ में स्पेंड करें, प्रेग्नेंट लेडी के साथ में. उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बंदिशें नहीं लगाएं, क्योंकि उससे क्या होता है, प्रेगनेंसी एक हैप्पी फेज़ नहीं रह करके एक ट्रबलसम फेज़ होता है. बाहर नहीं जाना है, घूमना नहीं है, तुम ये खाना मत खाओ, तुम ऐसे मत बैठो, तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो किसको बच्चा पैदा करना अच्छा लगेगा कि तुमने उसका बाहर घूमना बंद करा दिया, हॉलीडेज नहीं ले सकते हो, ये कपड़े नहीं पहनोगे, ये नहीं खाओगे. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रेगनेंसी इज़ नॉट अबाउट डिजीज़, इट्स अ स्पेशल फेज ऑफ लाइफ. आप सब करिए लेकिन एक स्पेशल तरीके के साथ, एंड दैट अ प्रेग्नेंट वुमन एंड द पर्सन अराउंड देम नीड टू अंडरस्टैंड. तो वही हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिगेस्ट थिंग इज गिविंग योर टाइम, क्वालिटी टाइम दैट दे शुड गिव. उनके साथ में रहो, टॉक अबाउट देयर डे, क्या फील हो रहा है, उसके लिए छोटे छोटे जेस्चर्स करिए. इट विल नॉट टेक मच ऑफ द टाइम. ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करना, जस्ट अ जेंटल टच एंड आस्किंग हर अबाउट हर होल डे. उसके लिए छोटा सा कुछ गिफ्ट लेके जाना, एट टाइम्स कुकिंग फॉर हर will make her happy. And most importantly, visit your partner for the doctor visit, जो कि लोग नहीं करते. Even if they are living in a joint family, I think it's a parental journey. It's not the woman journey to give birth to a child. So husband, wife, both should go every time without a miss for their antenatal checkup to the gynecologist. So this is what is, कोई hanky panky fancy I नहीं think I करना would है. say I am talking to a gynac who can talk like an entrepreneur, who can talk like a counselor, who can talk like a psychiatrist, psychologist, and she's giving advice. I'm on cloud 9 then. I think, ma'am, what advice would you want to give to the one who are, to the couple who are not able to conceive, and psychologically they are ill, I would say. I mean, maybe I'm using the wrong word, but mentally they are not stable, and peer pressure, family pressure भी बढ़ रहा है. तो उनको वो चीज़ें कैसे मैनेज करनी चाहिए? What advice would you like to give them? Nothing, just accept the reality. If a couple is facing any issue in completing their family, instead of struggling with their own selves या इधर उधर से कहीं से समझने की कोशिश करना, पॉडकास्ट यूट्यूब सुनना या फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स से बात करना, no need. Nowadays we are living in a world where everything is in hands reach. Search करिए who is the fertility expert nearby you. Go visit them and talk your heart out. Discuss with them. जो भी पूछना है. डॉक्टर्स इरिटेट होंगे, होते हैं, बिकॉज कई बार बहुत स्टूपिड क्वेश्चंस भी आते हैं. फॉर अस दे आर स्टूपिड, बट फॉर यू दे मे बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट concern of your issue. So just talk to them, get the advice from the expert is the biggest advice I want to give. Don't become an expert on your own. Don't do research in each and everything. Make your life easy. बहुत ईजी है ढूंढना कि मेरी ये प्रॉब्लम है, उसको कौन अच्छे से फिक्स करके देगा. आपके घर में नल खराब होता है तो समझदार आदमी प्लम्बर ढूंढता है. बिजली खराब होती है तो इलेक्ट्रीशियन ढूंढता है, खुद नहीं ठीक करने बैठ जाता है. अनटिल और अनलेस कि आपको मिल ही नहीं रहा है, क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो करना है. ऐसे अगर कोई भी मेडिकल नीड्स हैं, कोई भी फर्टिलिटी इश्यूज हैं, गो एंड सी एन एक्सपर्ट. आई थिंक इट मेक्स सेंस. सो दिस इज अ Q&A सेशन जिसमें यू आर गोइंग टू हेल्प अस विद द advice and some suggestions. So we'll do like quick. Ma'am, advice for biologically late couple.
Biologically late couple mean if a woman is 30 plus and is thinking of planning a child, first thing they should go and get their ovarian reserve test done and Mhm. seek a fertility expert advice. Okay. What are 3 foods women should eat to control PCOS and PCOD? There is no hanky panky like that. Again, it is an internet question. Hmm. जो रीजनल है, जो सीजनल है, होममेड है, घर का प्यार से बना हुआ खाना है, मॉडरेशन में आप सब खाइए. एज सच कोई भी सुपर फूड्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ इंडस्ट्री गिवन नेम्स हैं जिसकी वजह से बिजनेसेस चलते हैं. सिंपल रूल ऑफ थंब, eat at home, homemade, regional, seasonal, hygienic food which is balanced, carrying proportionate amount of protein, carbs, vitamins, minerals, या फिर जो हम एक बेसिक सा पढ़ते हैं, eat that. There is no superfood to cure either PCOS or any other illness. I agree with you, but don't you think the lifestyle which we are living in, हम अच्छा हमेशा मैं बचपन से सिखाया गया है कि घर का खाना बहुत अच्छा होता है. हाँ. इट्स नॉट बैड. बट मुझे अभी मैम जब थोड़ा बड़े होते हैं, होश आता है, क्वेश्चन अराइज होते हैं मन पे, मुझे लगता है कि वी टॉक अबाउट बैलेंस डाइट, क्या हम खा रहे हैं बैलेंस डाइट? आज हम इंडिया में जो खा रहे हैं इट्स मेनली ऑफ कार्ब्स. पूरे वर्ल्ड में द प्रोटीन डेफिसिट कंट्री इज आवर कंट्री. ये वेस्टर्न वर्ल्ड का दिया हुआ ज्ञान है कि जो वेजिटेरियंस हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं. दिस इज आवर लिमिटेड नॉलेज. हु सेड दैट ओनली नॉन वेजिटेरियन फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन? देखो, मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, रीजनल खाइए. आज अगर आप ठंडी जगह पे रहते हैं तो आपकी बॉडी को वार्म करने के लिए फ्यूल ज़्यादा चाहिए, उसको बर्न करनी है अंदर ज़्यादा कैलोरीज. और प्लस जो ठंडी जगह होती है वहाँ पे ईजिली ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स नहीं मिलता है, तो देयर यू मस्ट ईट मीट एंड चिकन. इट्स कंपल्सरी, बिकॉज एक तो वो आपको मिल रहा है, प्लस जब आप इसको डाइजेस्ट करते हो तो बॉडी जो है मोर हीट जनरेट करती है विच विल बी यूज टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द इनसाइड ऑफ आवर सिस्टम. बट अगर हम वार्मर प्लेसेस में रह रहे हैं तो हमारी बॉडी की नीड वैसी ही है. हमें एक तो जैसे जो ठंडी जगह पे रहते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, ऊपर नीचे बहुत सारी एक्टिविटी, उनको मसल मास भी ज़्यादा चाहिए. आप रायपुर में रह रहे हो, वैसे इतना गर्म है, आपको क्यों इतना प्रोटीन की ज़रूरत है? हर बॉडी एक जैसा बिहेव नहीं करती. हमें अपने बॉडी को समझना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा सा शांत रहेंगे ना, अपने आप बॉडी बताती है. प्लस किसने बोला कि हमारी डाइट, दालें आप खाते हैं, राजमा खाते हैं, चने खाते हैं. मुझे आज अच्छे से पता है कि एक फिक्स्ड होता था आप शनिवार को चना खाओगे. ऐसा क्या है शनिवार को चना खाने का है? बट वाई दीज थिंग्स वर मेड? बिकॉज हम चाहते थे कि लोग प्रोटीन खाएं. तो किसी भी चीज़ को अगर समझाना है ना एक अनपढ़ आदमी को या एक मासेस को, तो सबसे आसान होता है या तो उसको किसी डर के साथ जोड़ दो, या तो उसको किसी अवार्ड के साथ जोड़ दो, या उसको किसी रिलीजन के साथ जोड़ दो. यही 3 चीज़ें हैं. तो वैसा ही करते थे. शनिवार को छोले का प्रसाद बढ़ता है. छोले और चने जो है सबसे अच्छा एक प्रोटीन का सोर्स है, तो छोले चले गए. गुरुवार को कड़ी बनेगी. क्यों बनेगी भी कड़ी? गुरुवार को ही क्यों बनेगी? बिकॉज दिस इज जस्ट टू मेक देम कि उनकी डाइट बैलेंस हो जाए. तो जो भी सब्जियां, आप सिंपल रूल बनाइए ना, आपको सलाद खाना ही खाना है, आपको दाल खानी ही खानी है, मॉडरेशन में खानी है. आप जो अनाज है वो खाओ. आप ठीक है 3 मील नहीं खा सकते, 2 मील भी बहुत होती हैं खाने के लिए. बाहर खाना बंद कर दो या बहुत लिमिटेड खाओ. इससे ज़्यादा फैंसी क्या करना है? और आप भले ही खा लो, वो डालेंगे नट्स, सीड्स, अवाकाडो, ये वो खोजते रहो उसको, बट दोज आर आर्टिफिशियली प्रिजर्व्ड. आज लोग इतने अवाकाडो के पीछे पड़े हुए हैं. अवाकाडो उग रहा है हमारे यहाँ पे, जो पेस्टिसाइड और प्रिजर्वेटिव उसमें लग रहे हैं. डोंट यू थिंक कि जो अवाकाडो की न्यूट्रिशनल वैल्यू उससे कहीं ज़्यादा तो आप पेस्टिसाइड अपने बॉडी में डाल रहे हो. सो जो आपके यहाँ पे रीजनल और सीजनल मिलेगा उसमें पेस्टिसाइड्स और प्रिजर्वेटिव सबसे कम होंगे. दैट इज़ एक्चुअली द सुपर फूड. एंड ईट फॉर योर बॉडीली रिक्वायरमेंट. आज मेरा सिटिंग जॉब है, मुझे नहीं चाहिए इतनी कैलोरीज और इतना प्रोटीन्स. आई शुड ईट लाइट. बट इफ आई एम अ लेडी हु क्लीन्स द हाउस, या मेरा रेसलिंग करती हूँ, मैं कोई एथलीट हूँ, आई नीड टू हैव मोर ऑफ अ प्रोटीन. आई शुड ईट नॉन वेजिटेरियन फूड एज वेल. सो फूड शुड बी ट्रीटेड एज अ फ्यूल फॉर द बॉडी. जो उसकी नीड है उसके हिसाब से खाओ. और कोई एक फिक्स्ड रूल नहीं है जो सबके लिए अप्लाई होगा. जिसकी जो नीड है उसके हिसाब से फूड खाना चाहिए. मैम जो ये रूल बोला जाता है कि योर बॉडी नीड्स इक्वल अमाउंट ऑफ द प्रोटीन विच योर वेट इज,
अगर फॉर एग्जांपल आई एम 60, आई नीड 60 grams of a protein in a day. So ये सही नहीं है. एक हद तक सही है. साइंस में जो एक फिगर्स दी जाती हैं वो फिगर्स होती हैं जो ज़्यादातर लोगों पे अप्लाई होती है. फॉर अस दैट इज़ नॉर्मल. साइंस कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं बोलता है. तो जो फॉर्मूला ज़्यादातर लोगों में फिट हो जाए हम उसको एक रेफरेंस वैल्यू बना लेते हैं. एंड जो हम बोल रहे हैं, जो आपने बोला अभी साइंस के नेम पे, दिस विल अप्लाई टू मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, बट नॉट टू ऑल. ठीक है. सो उसी तरीके से अगर मैंने जैसे बोला आपको अपनी बॉडी वेट के हिसाब से खाना, बट व्हाट इफ अगर आप एक बॉडी बिल्डर हो तो, व्हाट इफ अगर आप एक कोल माइंस में काम करते हो और आपको पत्थर तोड़ना है, और व्हाट इफ अगर आप सिर्फ सवेरे से लेके शाम तक कुर्सी पे बैठते हो और सिर्फ साइन करते हो, ये रूल आप पे अप्लाई करेगा? नो. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि लिसन टू योर बॉडी. और बॉडी सिग्नल देती है. आप अगर गलत खाओगे तो आपको लेथार्जिक फील होगा, आपकी एक्टिविटीज़ भी वैसे होंगी. सो योर बॉडी शुड फील लाइट, यू शुड फील एक्टिव एंड you should feel happy. The day you will start or anyone will start treating food as a fuel for the body, ये सब सुपर फूड्स टर्मिनोलॉजीज ही खत्म हो जाएंगी. और सब कुछ आपके किचन में मिलता है. I think it makes sense to me. And you know, we youth, we are always confused about the food क्योंकि इतना ज्ञान आ गया है ना मैम कि ये खाओ ये नहीं खाओ. So I think it was a जितना सिंपल रहेगी ना लाइफ उतना आसान रहेगी. सही बात है. Young women reproductive health, like, so how they can keep their reproductive health good, apt and healthy? Eat healthy. Make sure that the menstrual hygiene is maintained. Listen to your body and maintain an optimum weight. And respect nature, because a female job, no matter हम कितने भी एडवांस हो जाएं, कैसा भी सोचें, giving birth is our responsibility only. That cannot be shared with anyone. तो अगर हमें उस चीज़ का भी ध्यान देना है तो अपने रिजर्व्स को जानना और उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ प्लान करना इज व्हाट इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. I think beautifully said. Ma'am, you know, because we are doing this podcast mainly for the youth, I would say, yes, for the youth. Ma'am, just a piece of advice for the youth, especially about mental health. One is, what is mental health according to you in today's world, and how youth can get over this, because youth is not even talking about it, and if they are talking about it, they don't know what a mental health is, you know. So how do you define mental health in today's generation? Mental health is all about staying satisfied and living in the world of gratification. If one is satisfied and thankful for what they are having in their life, I think they are at peace with their mental health. And a piece of advice that I would like to give to youth is never stop learning. And life is all about living and having experiences. Just live, experience and make choices. Take decisions. If you are scared of taking decisions, then life will lead you nowhere. So it is always good to make decision, right or wrong, that time will decide. But at least never stop living and taking decisions in your life. Take responsibility of your own health, wealth and your family. Quite insightful, I would say. Ma'am, how do you manage your personal life and your professional life? Because you're also a mother, also a wife, and you're also a famous doctor for helping a lot of families to you know, get the babies out of it. So Have clarity. have clarity. One, it is very clear. आप सब चीज़ें नहीं कर सकते हो, एंड इट इज़ एवरीडे स्ट्रगल. गिल्ट में आता है उसने ये किया मैंने नहीं किया. वो नहीं होना चाहिए. वन शुड बी वेरी क्लियर व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ, और उसके हिसाब से वन शुड बी प्रिपेयर्ड दैट दे हैव टू मेक सेक्रीफाइसेस, बिकॉज कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती. इफ़ यू वांट टू गेन समथिंग यू मस्ट बी रेडी टू लूज समथिंग, और वो बैलेंस डेली बिठाना पड़ता है. एंड दैट इज़ पॉसिबल विद मी. आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड थ्रू मेडिटेशन.
बिकॉज मेडिटेशन इज़ द वन विच कीप्स यू इन बैलेंस. इनफैक्ट हमारी जो बॉडी है, इट्स बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स. वो दोनों हाफ भी इक्वल नहीं है, एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं. And everyday struggle within ourselves is to keep a balance between your right and left side. So if one is able to maintain that balance, जैसे वो balance आता है उसके बाद आपके पास clarity आती है. And once there is clarity of thoughts and your likes, dislikes, where you want to go and where you don't want to go, things automatically start falling in place. I think thank you, ma'am. I think we had a great insightful session as I expected, and I think I would give the audience to chance, like if they can ask any question, anyone here want to ask. Ma'am, what is your view on unexplained infertility? Like, is it a gray area where science is not defined that what is the reason for not able to conceive? Like, there's a term unexplained infertility. So what should we do if all the tests and everything is fine in that case? Unexplained infertility doesn't mean that there is no problem. It is definitely a gray zone in the science. It means that there is a problem, but unfortunately, science is unable to define, to test, and exactly deal with that problem. So that what we call this as a mixed bag, where we are not able to put any label कि ये क्या है, हम उसको unexplained section में डाल देते हैं. And there is a way to treat and deal with unexplained infertility. It's an art which is very difficult to tell in a moment. But yes, unexplained infertility is a gray zone of science, and it is not like that we cannot deal with unexplained, but it is dealt in a different way. And secondly, the couple who is experiencing unexplained infertility is difficult for them because they are not aware what they are fighting with. And at the same time, it is difficult for the clinician because they also don't know what is the real enemy. So what we do hit and trial. Okay, and that hit and trial is based upon many parameters, and it's a complexity which I think it's very difficult that how to deal with it I can answer in a session like this. Okay, thank you. So I really wanted to know that young women, when they face certain problems, whether it's sex related, sexual intercourse related, whatever such problems are, hormonal related, whatever it is. So when we, there are two major concerns. First, we are unable to determine which gynec we should go to because there are a lot of stigma around us, you know, and being young women, and sometimes we cannot even take help of our family members. There are certain cases like that. So how to determine who to go to, and when they ask judgmental questions, I am sure that a lot of females here must have faced it. A lot of judgment comes our way. So how to deal with that? You cannot deal with other people's. See, it is very difficult. Problem lies in this only that we start controlling other people around us. You cannot change them. What important for us is that what we want for ourselves. हमें अपने आप को change करना है. It was our need. मेरी problem थी. मुझे उसका solution चाहिए. So obviously I'll go whosoever gynecologist is available nearby me and whosoever is approachable to me. Rest is it's her problem whether if she is asking judgmental questions, non-judgmental questions, क्या फर्क पड़ता है इससे आपको? So you just go to her, ask your problem, get the solution. Rest is her problem. Right. But दिक्कत क्या है कि more than the actual stuff, we believes more in reactions, and we give other people command to lead our life. इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, if people are willing to listen to me for a minute. Please. एक बार गौतम ये विवेकानंद जी का ही एक स्पीच दे रहे थे, एंड वहाँ पे वो स्पीच दिया, वो आए और बहुत अच्छा उनका हुआ, एंड ही वेंट टू अनदर प्लेस वेयर ही स्टार्टेड गिविंग हिज ओरेशन, एंड समवन इन द ऑडियंस स्टूड अप एंड सेड कि ये क्या शिट है, ऐसा नहीं वैसा. ही सेड मैनी बैड थिंग्स अबाउट इंडियन कल्चर और उनके थॉट प्रोसेस को लेकर के. एंड विवेकानंद जी सिंपली स्टूड अप, सेड थैंक यू, एंड बोले कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ही वॉकड अवे. एंड दैट पर्सन वाज टोटली एग्जैक्ट कि मैंने इतना बुरा बोला, आपने इस पर कुछ नहीं आंसर दिया, कुछ नहीं जवाब दिया, क्या मतलब है इस चीज़ का, यू शुड हैव आंसर्ड दिस. सो ही सेड कि इससे पहले मैं एक जगह और ओरेशन देने गया, एंड दैट पर्सन गॉट मी अ वेरी गुड गिफ्ट और एक फ्लोरल बुके और बहुत अच्छी चीज़ें लाया जो मैंने नहीं ले सकता था,
मैंने वहीं छोड़ा और उसने वो चीज़ें उठा करके अपने बच्चे को दे दी. सो इट वॉज माई चॉइस टू टेक दैट और नॉट. Yeah. आपने जो मुझे दिया ये भी मेरी चॉइस है वेदर टू टेक दैट और नॉट. आई केम हेयर टू पुट माई पॉइंट विच आई डिड. Right. रेस्ट इज अप टू यू. आपने मुझे दिया, मैंने नहीं लिया, अब जो बचा रह गया वो आपके पास है, आप जानो इसका क्या करना है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वट यू आर गिविंग टू मी. Okay. सो Lovely. वट पीपल से लेट देम से. Yeah. आप क्यों उनके ऊपर रिएक्ट करते हो? यू कैन नॉट चेंज देम. इट इज Right. सो डिफिकल्ट टू चेंज योर ओन सेल्फ. Yeah, definitely. नहीं कर सकते ना खुद को भी चेंज. तो हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके आसपास के लोग आपके हिसाब से चेंज होंगे? Right.